ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں سویٹر بناتی تھی۔ رات کوئی نہ کوئی آ کر اماں سے سویٹر خرید جاتا۔ گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا جب اچانک رات کوئی اماں سے سویٹر لے گیا اور بدلے میں ہزاروں روپے دے گیا۔ اب روز یہی ہوتا۔ پریشانی کی بات یہ تھی، جب اماں دروازے پر سویٹر دینے جاتی تو گھنٹے بعد واپس آتی اور پوری گیلی ہوتی۔ ایک دن اماں کی آنکھ لگ گئی اور اماں کی جگہ میں چلی گئی۔ میں نے اماں کی ہی چادر اوڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو باہر فقیر تھا۔ جان نکل گئی جب اماں سمجھ کر اس نے میرا نام یوسف خان ہے۔ میں کاروباری دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہوں۔ کئی بڑے شہروں میں میرے کئی کارخانے ہیں۔ میرے کارخانے میں سویٹر بنے جاتے تھے اور اچھی کوالٹی کے مال کو ہم باہر کے ملکوں میں بھی سپلائی کرتے تھے۔ ویسے تو میرے پاس کام کرنے والوں کی تعداد کم نہیں، مگر پھر بھی جب میں کسی مجبور اور بے سہارا کو دیکھ لوں تو اس کو اپنی فیکٹری میں نوکری پر رکھ لیتا ہوں۔ ایسے ہی ایک دن میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو ایک لڑکی آئی۔ اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نفیس سویٹر تھا۔ کہنے لگی، میں اسے آپ کو بیچنے آئی ہوں، پلیز مجھ سے خرید لیں، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ میں نے سویٹر اٹھا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور اس پر کافی محنت کی گئی ہے۔ میں نے پوچھا کتنی قیمت ہے اس سویٹر کی، تو وہ کہنے لگی 5,000۔ میں سن کر چونک گیا۔ اتنی زیادہ قیمت؟ یہ کسی بھی طرح سے 1,000 سے زیادہ کا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں اتنے زیادہ پیسے تو تمہیں نہیں دے سکتا، تم کسی اور کو جا کر بیچ لو۔ مجھے ایسے لگا کہ میری بات سن کر وہ مسکرائی ہو۔ کہنے لگی، ایک بار گھر جا کر اپنے والد کو دکھا لیجیے گا، مجھے امید ہے یہ انہیں بہت پسند آئے گا۔ وہ اس کی 5,000 کیا 10,000 قیمت دینے پر بھی تیار ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سویٹر وہیں چھوڑ کر چلی گئی اور میں اسے پکارتا رہ گیا۔ عجیب لڑکی تھی۔ مجھے اس کی بات یاد آئی تو میں نے حیرانی سے سوچا کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ اپنے باپ کو یہ سویٹر دکھانا؟ کیا وہ میرے ابا کو پہلے سے جانتی ہے؟ اور ابا بھلا اس سویٹر کی زیادہ قیمت کیوں دیں گے؟ یہ سوال میرے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ میں نے سوچا اسی لڑکی کو بلا کر پوچھتا ہوں۔ میں نے اپنے ملازم کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ اسے بلا کر لاؤ، مگر وہ ہانپتا ہوا واپس آ گیا اور کہنے لگا، صاحب جی وہ لڑکی تو چلی گئی۔ خیر میں نے سویٹر کو ایک جانب رکھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ شام کو گھر جاتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابا کو دکھاتے ہوئے میں نے ساری بات کی تو وہ جلدی سے کہنے لگے، تم نے اس لڑکی سے کچھ پوچھا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے اس نے کچھ بتایا تو نہیں؟ ابا کی بات پر میں نے الجھن سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ اسے کچھ خاص بتانا تھا مجھے؟ ابا گھبرا گئے، کہنے لگے، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، تم اس لڑکی کو کل 5,000 دے دینا، بڑی مجبور ہوگی بیچاری۔ ابا کی بخلاہٹ سے مجھے تشویش ہونے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بجائے غصہ ہونے کے ابا کہہ رہے ہیں کہ اسے 5,000 دے دوں۔ میں نے کہا، ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، 1,000 کا بھی نہیں ہوگا اور میں اس کے 5,000 دے دوں؟ میں یہ سویٹر کل اس کو واپس کروں گا۔ ابا نے جھپٹ کر میرے ہاتھ سے سویٹر واپس لے لیا اور کہنے لگے، میں اسے پہنوں گا، تم جتنے پیسے وہ مانگے اسے دے دینا۔ میں ابا کو دیکھ کر شک میں پڑ گیا کہ کیا وہ اس لڑکی کو جانتے تھے جو اس کی مدد کا کہہ رہے ہیں۔ ابا اٹھ کر اندر چلے گئے اور میں سوچتا ہی رہ گیا۔ اگلے دن 9 بجے پھر سے وہ نقاب پوش لڑکی میرے دفتر میں تھی۔ میں نے اسے 5,000 دیے تو وہ انکار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اصل میں اب اس سویٹر کی قیمت 10,000 ہی ہو گئی ہے، لائیے 10,000 دیجیے۔ میں نے غصے سے اس کو دیکھا اور تیش بھرے انداز میں کہا، لڑکی تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ میرے ابا نے کہا کہ لڑکی مجبور ہوگی، اس کی مدد کر دینا، مگر تم تو کہیں سے بھی مجبور نہیں لگ رہی، تم تو بلیک میلنگ پر اتر آئی ہو، تم جاؤ یہاں سے، اب تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ لڑکی آرام سے کہنے لگی، ارے اپنے باپ سے تو پوچھ لیں صاحب، یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں آپ کو ڈانٹیں کہ جتنے پیسے میں نے مانگے اتنے کیوں نہ دیے۔ اس کے اس پر اعتماد انداز پہ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے اس کو گھورتے ہوئے ابا کا نمبر ملایا اور کہا، ابا وہ لڑکی 10,000 مانگ رہی ہے۔ ابا نے جلدی سے کہا، بیٹا جتنے پیسے وہ مانگے اتنے ہی دے دو، تم کیا جانو اس بیچاری کی مجبوری کو۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا، جس طرح دھڑلے سے وہ بات کر رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک مجبور لڑکی ہے۔
मुझे तो वो पक्की ब्लैकमेलर लग रही थी जो लूटने आई थी। मैंने दराज से 10,000 निकालकर इस लड़की को दिए तो वो चली गई। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि अब्बा इस लड़की से इतना डर क्यों रहे थे। क्या वो इस लड़की को पहले से जानते थे? ये कोई मामूली बात नहीं थी जो मैं चुप करके बैठ जाता। मेरे ख्याल से वो लड़की किसी वजह से मेरे बाप को ब्लैकमेल कर रही थी, इसीलिए अब्बा ने इसको पैसे दिलवाए। लेकिन अगर वो चाहती तो सीधा अब्बा के पास ही जाती ना। अब्बा उसे लाजमी पैसे दे देते। इस लड़की के मेरे पास आने का मकसद क्या था? मैं काफ़ी देर सोचता रहा मगर कोई सिरा हाथ ना आया। शाम को मैं घर गया तो अब्बा को गहरी सोच में मगन पाया। मैंने जाकर इस लड़की के बारे में बात की तो अब्बा ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चले गए। वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैं समझ रहा था कि इस लड़की की वजह से वो परेशान होंगे। मैं चाहता था वो मुझसे खुलकर बात करें ताकि मैं उन्हें इस मसले से निकाल सकूं, मगर वो तो चुप साध गए थे। अगले दिन मुझे एक फ़ाइल लेने के लिए घर आना पड़ा तो गेट से इस लड़की को बाहर निकलते देखकर मैं चौंक गया। वो लड़की हमारे घर क्या करने आई थी? मेरा दिल किया कि अब्बा से पूछूं जाकर, मगर मैं चुप कर गया। उन्होंने कौन सा बता देना था। मेरी माँ का इंतकाल काफ़ी साल पहले ही हो चुका था और मैं अब्बा की इकलौती औलाद था, इसलिए इनकी इस परेशानी को मेरे अलावा और कोई हल नहीं कर सकता था। अचानक मुझे ख्याल आया और मैं फ़ाइल वहीं छोड़कर भागता हुआ इस लड़की के पीछे गया। मैंने सोचा इसका पीछा करके इसका अता पता मालूम करता हूँ कि कहाँ रहती है और फिर किसी से कहकर इसकी मालूमात निकलवाऊंगा कि कैसी लड़की है और कौन कौन इसके घर में रहता है। और भी जितनी ज़रूरी मालूमात हों मुझे सब पता होना चाहिए ताकि मैं इसका और अपने बाप का कनेक्शन ढूंढ सकूं। वो लड़की पैदल ही चली जा रही थी और मैं गाड़ी में इसके पीछे था ताकि उसे शक ना हो। वो लड़की एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में एक घर में चली गई। मैंने सोचा अच्छा तो ये है इसका घर। अपने ख़ास आदमी से कहूँगा कि इसकी मालूमात निकलवाए। मैं इस घर का पता ध्यान से ज़हन नशीन करके वापस चला गया। मैंने अपने आदमी को जाते ही इस लड़की के घर का पता दिया और कहा मुझे इसके बारे में मालूमात करके दो। वो चला गया और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। शाम तक वो लड़की मेरे जहन से निकल चुकी थी। मैं घर गया तो रात के खाने पर मेरे अब्बा ने मेरी शादी का जिक्र छेड़ दिया। मैंने चौंक कर उनको देखा। आज से पहले तो इनको मेरी शादी का ख्याल नहीं आया, ये आज कैसे आ गया? मैं 27 साल का हो चुका था और अभी मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं शादी के चक्कर में खुद को उलझाऊं। अब्बा कहने लगे मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, गरीब घर की है मगर बहुत अच्छी है। इसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। मैंने कहा अब्बा अभी मुझे शादी की ज़रूरत नहीं। तो अब्बा कहने लगे बेटा तुम्हें चाहे बीवी की ज़रूरत हो या ना हो, इस घर को एक बहू की अशद ज़रूरत है। तुम्हें हर हाल में शादी करनी होगी। अब्बा के चेहरे से लग नहीं रहा था कि उन्हें बेटी की शादी की बात करते हुए खुशी महसूस हो रही है। वो ऐसे रटे रटाए अंदाज में बोल रहे थे जैसे उन्हें ये सब कुछ किसी ने सिखाया हो कि ऐसे कहना है। मैंने अब्बा की तन्हाई के ख्याल से कहा अब्बा जी ठीक है, आपने जिससे मेरी शादी करवानी है करवा दें, मैं तैयार हूँ। अब्बा कहने लगे बस फिर ठीक है, इसी हफ्ते मंगनी और इसी महीने के एंड पर शादी। मैं हैरान हुआ कि अब्बा इतनी भी जल्दी की क्या ज़रूरत है, मगर अब्बा ने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं और भागकर कमरे में चले गए जैसे उन्हें कोई ज़रूरी बात याद आ गई हो। मैं भी भागता हुआ उनके पीछे गया तो दरवाज़ा बंद था। मैं वापस पलटने लगा तो कमरे के अंदर से अब्बा की आवाज़ आई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने दरवाजे से कान लगा दिए। वो कह रहे थे जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अपने बेटे को शादी के लिए राज़ी कर लिया है, अब तुम भी मेरी शर्त पूरी करो। मैं अपनी जगह साकित रह गया कि अब्बा क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने किसके कहने में आकर मेरी शादी की बात मुझसे की और कैसी शर्त? मैंने मज़ीद सुनना चाहा मगर अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब्बा को क्या हो गया था? वो कुछ दिनों से बिल्कुल बदल से गए थे और अजीब हरकतें कर रहे थे और ये सब इस स्वेटर वाली लड़की के आने के बाद से शुरू हुआ था। अब मुझे भी दिलचस्पी होने लगी कि अब्बा का कौन सा ऐसा राज है जिसकी खातिर वो किसी से ब्लैकमेल हो रहे थे और इस हद तक कि मुझे भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोच लिया। ये सवाल मुझे बहुत चुभ रहा था कि अब्बा किसके कहने में आकर मेरी शादी करवाने का सोच रहे हैं। मैंने सोचा इतना उलझने से बेहतर है कि अब्बा से ही पूछ लूं। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गया और अब्बा को कहा किससे बात कर रहे हैं आप? मैंने सब सुन लिया है
किसके कहने में आकर आपने मेरी शादी की बात मुझसे की है और किस शर्त की बात कर रहे थे आप? मेरी बात सुनकर एक लम्हे को अब्बा का रंग फक हो गया, जैसे वो घबरा गए हों। फिर कहने लगे, अरे बेटा, मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो मुझे समझा रहा था कि बेटे की शादी कर दो, इसकी उम्र हो गई है। मैंने कहा कि मेरा बेटा नहीं मानेगा, तो वो कहने लगे तुम शर्त लगा लो, वो मान जाएगा। यूँ हमने शर्त लगा ली और इसके कहने में आकर मैंने तुम्हारी शादी का जिक्र छेड़ दिया। बस इतनी सी बात है। मैं सुनकर पुरसकून हो गया कि अच्छा तो ये बात है। मैं ख्वामख्वाह में जाने क्या क्या सोचने लग गया था। अब्बा के कमरे से निकलते हुए मेरी नज़र अचानक इस स्वेटर पर पड़ी जो वो लड़की लेकर आई थी। वो बास्केट में पड़ा था। हैरत थी, इतना महंगा खरीदा जाने वाला स्वेटर अब्बा ने यूं कूड़े में फेंका हुआ था। मगर अब्बा को कुछ पूछने की बजाय मैं बाहर आ गया। अब्बा ने मेरी मंगनी की तारीख जुम्मे के रोज़ तय कर दी। मुझे भी कोई एतराज़ ना हुआ। अब्बा ने मुझे तस्वीर दिखाई थी। लड़की देखने में अच्छी सूरत की थी और लगभग मेरी ही उम्र की थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मेरी अपनी कोई पसंद तो थी नहीं, इसलिए अब्बा की मर्ज़ी पर ही मैंने हामी भर ली। मुझे एक सादा सी घरेलू लड़की चाहिए थी और वो लड़की मुझे ऐसे ही लगी थी। मंगनी वाले दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी की थी। मुझे हैरत इस बात की थी कि एक बार भी ना लड़की वाले हमें देखने आए और ना हम लोग बाकायदा रिश्ता लेकर गए, तो फिर एकदम मंगनी। लेकिन अब्बा ने ये कहकर मुतमईन कर दिया कि वो मेरे पुराने जानने वाले हैं। अब्बा के साथ गाड़ी में बैठकर मैंने मोबाइल निकाल लिया। कुछ देर बाद गाड़ी को जाने पहचाने रास्ते पर जाते देखा तो मैं चौंक गया। ये तो वही रास्ता है जिस पर उस दिन मैं इस लड़की का पीछा करते हुए आ रहा था। क्या मेरे होने वाली मंगेतर का घर भी इसी इलाके में है? मैं चौकन्ना होकर बैठ गया जब गाड़ी को इसी गली में जाते देखा जहां इस स्वेटर वाली लड़की का घर था, और कदमों तले से ज़मीन तब निकली जब इसी घर के आगे हमारी गाड़ी रुकी। मेरे जहन में कुछ दिन पहले का मंजर आया जब मैं अपने दफ्तर बैठा हुआ था। मेरा ख़ास आदमी जिसे मैंने स्वेटर वाली लड़की की मालूमात इकट्ठी करने का कहा था, वो आकर मुझे इस लड़की की मालूमात देते हुए कहने लगा, साहब जी, इस लड़की का नाम रुबाब है और वो अपने 2 छोटे बहन भाइयों के साथ रहती है। इसके बाप का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था और माँ भी कुछ साल पहले मर गई थी। वो लड़की स्वेटर बेचकर अपने बहन भाइयों का गुजारा करती है। ये सब बातें मैंने मोहल्ले वालों से मालूम की। इनके मुताबिक लड़की इंतहाई शरीफ और बाकिरदार है। ये मालूमात ऐसी नहीं थी कि इस लड़की के बारे में कोई काबिल गिरफ्त बात पता चलती, इसलिए मैं भी चुप करके बैठ गया कि दोबारा वो लड़की सामने आई तो खुद मामले की तह तक जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या इल्म था कि वो सामने क्या मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की प्लानिंग कर रही है, और इस काम में मेरे बाप की भी इसे मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। मुझे ख्यालों में डूबा हुआ देखकर अब्बा बोले, क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो? नीचे नहीं उतरना क्या? यही घर है लड़की का, मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है। मैंने गौर से अब्बा को देखा। वो खुश होने की एक्टिंग कर रहे थे। अगर उस दिन मैं स्वेटर वाली लड़की का पीछा न करता तो अब्बा की बातों में आ जाता। मुझे कभी मालूम ही ना होता कि वो मेरी मंगनी किससे तय कर रहे हैं। अभी भी वक्त था, मैं इसी लड़की की सारी चालें उसी पर उल्टा सकता था। ये कहकर मुझे गरीब लोगों में मंगनी नहीं करनी, मगर फिर सोचा ऐसे तो कभी मुझे इसके और अपने बाप के कनेक्शन के बारे में मालूम नहीं हो पाएगा कि इसने किस बात पर मेरे बाप को ब्लैकमेल करके इस शादी के लिए तैयार किया। इस दिन जो अब्बा के कमरे के बाहर मैंने सुना वो सच था। अब्बा ने झूठ बोला था कि वो अपने दोस्त के कहने पर मेरी शादी कर रहे हैं। इस दिन भी वो इसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अब वक्त आ गया था कि मैं भी इस खेल में शामिल होकर इनको बेनकाब करता, इसलिए मैंने मंगनी का फैसला कर लिया। सोचा कि मंगनी कर लेता हूँ ताकि इनको लगे कि मैं बेखबर ही हूँ। फिर जैसे ही सारा सच सामने आएगा मंगनी तोड़ दूंगा। यही सोचकर मैंने अपने आप को काबू किया और अब्बा के हमरा अंदर चला गया। अंदर काफ़ी गहमा गहमी थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, जबकि हमारे साथ बस कुछ करीबी अजीज ही थे। मैंने हैरानी से सारी तैयारी को देखा। देगे पक रही थीं। सब लोगों ने चमक दमक वाले कपड़े पहन रखे थे। शादी का सा समा लग रहा था। मैं इधर उधर देख रहा था कि अब्बा को चोरी चोरी घर के अंदर जाते देखा। मुझे तजस्सुस हुआ तो मैं भी मेहमानों से वॉशरूम जाने का बहाना करके उठ गया और अब्बा के पीछे चला गया। एक खुले कमरे से अब्बा की आवाज़ आई। वो इस लड़की से कह रहे थे,
तुमने तो मंगनी का कहा था, ये शादी बीच में कहाँ से आ गई? एकदम अचानक वो लड़की बोली। अंकल जी अभी से घबरा गए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। शादी तो होगी, अब अपने बेटे को आपने कैसे राजी करना है ये आप पर है। अगर शादी ना हुई तो वो राज जो मेरे सीने में दफन है सब लोगों के सामने आ जाएगा। अब्बा घबरा कर बोले, नहीं प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं अभी अपने बेटे से बात करता हूँ। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इस लड़की ने जानबूझकर हमें ट्रैप किया था। इसने पहले से ही शादी का सारा इंतजाम कर रखा था। इसके सारे रिश्तेदार और दोस्त शादी में ही शिरकत करने आए थे। बस हम लोग ही बेवकूफ़ थे जो मंगनी करने आए और अब शादी का पैगाम मिल रहा था। मैं जानता था कि अभी थोड़ी ही देर में अब्बा आएंगे और मुझे शादी के लिए राज़ी करेंगे, और वही हुआ। अब्बा आकर अपनी कसम देकर मुझे राज़ी करने लगे। मैं कभी ना मानता, मगर इतने लोगों के सामने अब्बा को शर्मिंदा नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से हाँ कर दी। शादी हो गई और मैं इस लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आया। अब्बा बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मगर जाने क्या राज था कि इस कदर मजबूर हो गए। काश वो मुझे बता देते तो मैं उनको इस मसले से निकाल लेता। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने कमरे में जाकर उस चालाक लड़की की शक्ल भी देखूं। मैं घर से बाहर जाकर टहलने लगा, तभी एक 22-23 साल का लड़का घर के गेट की तरफ बढ़ा। मैंने उसे पहचान लिया था, वो मेरी बीवी का भाई था। वो रात के इस पहर क्या करने आया था? मैंने छुप कर देखा तो मेरी दुल्हन बनी बीवी बाहर आकर उससे बात करने लगी। उसने एक डायरी अपनी बहन को दे दी और खुद चला गया। मैं दंग रह गया। इस डायरी में ऐसा क्या खास था जो इसका भाई रात के इस पहर उसे देने आया? मैं कमरे में गया तो वो डायरी पर कुछ लिख रही थी। मुझे देखकर चौंक कर उसने जल्दी से डायरी बंद की और तकिए के नीचे छुपा दी। ज़रूर इसे डायरी लिखने की आदत थी। मुझे देखकर कहने लगी, मैंने तुमसे मजबूरी में शादी की है, इसलिए मुझसे कोई तवक्को मत रखना। मैंने कहा, मैंने भी अपने बाप के मजबूर करने पर तुमसे शादी की है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चला आया और सोचा कि इस राज तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी न किसी तरह इस डायरी तक रसाई हासिल की जा सके। अगले दिन वो मेरे साथ दफ्तर जाने के लिए तैयार हुई तो मैं चौंक गया कि घर पर कब्जा करने के बाद क्या उसका इरादा बिजनेस संभालने का भी है। अब्बा ने मेरी तरफ इल्तिजाई नज़रों से देखा तो मैं चुप कर गया। मैं अब मौके की तलाश में था कि इसकी डायरी मेरे हाथ लगे, और आखिर एक दिन मौका मिल ही गया। उस दिन घर पर कोई नहीं था। मैं उसके कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अलमारी को ताला लगा हुआ था, यकीनन इसी में वो डायरी रखती होगी। मेरे पास चाबियां थीं, इसलिए ताला खोला तो सामने ही उसकी डायरी पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से डायरी उठाई और अपने कमरे में आकर पढ़नी शुरू कर दी। मेरा नाम रुबाब है। ये डायरी मुझे मेरी माँ ने कुछ दिन पहले ही मेरी सालगिरह पर तोहफे में दी है। इससे पहले मैं अपने दिल की बातें एक कागज़ पर लिखकर फाड़ देती, मगर अब कि ये डायरी मुझे मिली है तो अब से मैं अपने दिल की हर बात इसमें लिखा करूँगी। मेरी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए आज से इस डायरी को मैं अपनी दोस्त बना रही हूँ। मैं अम्मा की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन भी है। हमारा 5 लोगों पर मुश्तमिल घराना मुझे बहुत अजीज था। हम सब की ज़िंदगी बड़े सुकून और इत्मीनान से गुजर रही थी। जब इस पुरसकून ज़िंदगी में हलचल मची, अम्मा और अब्बा के झगड़े होने लगे। जाने वो क्यों लड़ते थे। मैं इस वक्त 12 साल की थी जब रोज़ घर में लड़ाई होती। मुझे अम्मा और अब्बा का यूं लड़ना अच्छा नहीं लगता था और मैं डर के मारे अपने कमरे में छुप जाती थी। मैं अम्मा से बहुत पूछती, मगर अम्मा न बताती कि अब्बा ने क्या किया है। अब तो अब्बा ने घर आना ही छोड़ दिया था। मैंने अक्सर अम्मा को चोरी चोरी रोते देखा था। जाने हमारे हंसते बसते घर को किसकी नज़र लग गई थी। अब्बा घर कम कम आते थे, मगर फिर उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया। जाने वो कहाँ चले गए। मैं रोज़ दरवाजे पर बैठकर उनका इंतज़ार करती थी, मगर महीनों गुजरने के बावजूद भी अब्बा वापस ना आए। अम्मा मुझे यूं इंतज़ार करते देखती तो रोते हुए कहती, तेरा बाप मर गया है, इसका इंतज़ार छोड़ दे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी इस बात का यकीन आने लगा कि मेरा बाप मर गया है। बाप के बाद हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए थे। मेरी अम्मा को सिलाई कढ़ाई का हुनर आता था, इसलिए उसने स्वेटर बुनने शुरू कर दिए। अम्मा को उम्मीद थी कि उसके बुने स्वेटर हाथों हाथ बिकेंगे,
मगर 10-15 दिन गुजर जाने के बावजूद बस 2-4 स्वेटर ही बिके, जो मोहल्ले वालों ने तरस खाकर खरीद लिए थे। इन्हीं दिनों मेरा मैट्रिक का दाखला जाना था, मगर फीस नहीं थी तो स्कूल वालों ने घर भेज दिया। मुझे यूं घर आते देखकर मेरी माँ बहुत गमगीन हुई और कहने लगी, तू फिक्र न कर, मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि कोई स्वेटर खरीद ले। अम्मा घर से बाहर चली गई। कुछ घंटों बाद वापस आई तो मुझे फीस के पैसे देकर बोली, तू टेंशन न ले, अब से रोज हमारा एक स्वेटर बिका करेगा। मैंने हैरान होकर पूछा, अम्मा ये पैसे कहाँ से आए? अम्मा कहने लगी, तू इस बात की फिक्र न कर कि पैसे कहाँ से आए, तू बस जाकर स्कूल वालों को फीस देकर आ। फीस पाकर मैं खुश तो थी, मगर ये तजस्सुस अपनी जगह पर कायम था कि अम्मा को इतने सारे पैसे किसने दे दिए। रात के 9 बजे हमारा दरवाज़ा खटका तो मैं हैरानी से उठ बैठी कि इस वक्त कौन आ गया। अम्मा कहने लगी, तू रहने दे, मैं जानती हूँ कि कौन होगा। अम्मा ने एक स्वेटर शॉपर में डाला और बाहर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। वो जो कोई भी लेने वाला था उसने अम्मा को पैसे दिए और स्वेटर वाला शॉपर लेकर चला गया। रात के 9 बजे एक कस्टमर का आना बड़ी हैरानी वाली बात थी, मगर फिर रोज़ ही ये होने लगा। रोज़ कोई ना कोई आकर अम्मा से स्वेटर ले जाता और अम्मा को पैसे दे जाता। अब हमारे घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। मैं अब बच्ची नहीं थी कि सवाल न करती। मैं रोज़ अम्मा से पूछती, ये कस्टमर रात को ही क्यों आते हैं, दिन के वक्त आकर क्यों नहीं खरीद लेते? अम्मा बहाना बनाकर मुझे टाल देती। एक बार अम्मा को कमर में बहुत दर्द था और उससे हिला भी नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा, अम्मा दरवाजे पर गाहक आया है, मैं दे दूं जाकर। अम्मा कहने लगी, खबरदार, तो यहीं बैठ जा चुप करके, मैं खुद दूंगी। ये सब 2-3 हफ्ते चलता रहा, मगर एक दिन जो हुआ उसे देखकर यकीन न आया कि ऐसा भी हो सकता है। उस रात कोई अम्मा से स्वेटर ले गया था और बदले में हज़ारों रुपए दे गया। पैसों के साथ एक खत भी था। अम्मा ने मुझे वो खत ना पढ़ने दिया। कहने लगी, जिस ग्राहक ने पैसे भेजे हैं उसने खत में एड्रेस लिख कर दिया है, मुझे ही रोज़ जाकर इसको स्वेटर पहुंचाने होंगे। अब परेशानी की बात ये थी कि अम्मा स्वेटर देने गई तो घंटा हो गया, मगर वापस ना आई। मैंने 3-4 बार गली में जाकर देख लिया, मगर अम्मा कहीं नहीं थी। आखिर घंटे से भी ज़्यादा हो गया तो अम्मा घर वापस आई। इसका हुलिया देखकर मैं चौंक गई। अम्मा का लिबास मुकम्मल भीगा हुआ था और वो गीली हो चुकी थी। मैंने पूछा, अम्मा क्या हुआ, तुम गीली क्यों हो गई? अम्मा ने मुट्ठी में दबे हज़ारों रुपए के नोटों की गड्डी मेरे हवाले की कि जाकर संदूक में रख कर आ। अब रोज़ यही होता, अम्मा स्वेटर देने जाती तो घंटे बाद इसकी वापसी होती और मुकम्मल गीली होती हाथ में, मगर हज़ारों नोट दबे होते। मैं तजस्सुस के मारे अम्मा से कई मर्तबा पूछ चुकी थी कि ये सब क्या है, क्या राज है कि तुम मुकम्मल भीग कर वापस आती हो, मगर अम्मा मुझे डांट कर चुप करवा देती। अब हमारे हालात बदल गए थे। अम्मा ने मुझे भी अच्छे वाले कॉलेज में दाखिल करवा दिया। खुद वो घर बैठकर सारा दिन स्वेटर बुनती रहती और रात को देने चली जाती। मेरे लिए ये एक मुअम्मा बन चुका था कि एक स्वेटर के बदले कौन अम्मा को हज़ारों रुपए देता होगा। एक दिन घर में मेहमान आ गए। अम्मा सारा दिन काम में लगी रही और उनके जाने के बाद स्वेटर बुनना शुरू किया और काम करते करते उसकी आंख लग गई। उसी वक्त दरवाजे पर होले से दस्तक हुई। मैंने सोचा अम्मा को उठा दूं, मगर फिर सोचा कि आज अम्मा की जगह मैं चली जाती हूँ, मुझे भी तो पता चले कि अम्मा को कौन हज़ारों रुपए देता है। मैंने अम्मा की चादर ओढ़ी और मुंह ढांप कर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक फकीर के से हुलिये का शख्स खड़ा था, जिसने मुझे अम्मा समझकर मेरी कलाई पकड़ी और अपनी भारी आवाज़ में कहा, आज इतनी देर कर दी आने में। मैंने गौर से इस आदमी की शक्ल देखी तो मेरे सर पर जैसे आसमान फट गया। अगरचा मैंने 5 साल के बाद देखा था, मगर मैं पहचान गई थी, वो तो अब्बा थे। मैंने हाथ छुड़ाकर मुंह से चादर हटाई तो अब्बा के चेहरे के रंग बदल गए। उनकी रंगत फक हो गई। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तो समझी थी कि अब्बा का इंतकाल हो गया है, मगर वो तो जिंदा थे और इतने सालों से कहाँ थे? अब्बा ने मेरी तरफ देखे बगैर घर जाकर अम्मा को जगाया। अम्मा ने मुझे गुस्से से देखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। क्या अम्मा ये बात जानती थी कि अब्बा जिंदा हैं? उन्होंने हमसे क्यों छुपाया? अब्बा अम्मा को लेकर घर से बाहर चले गए थे। अम्मा वापस आईं
تو میں ان سے لڑنے لگی کہ ابا زندہ تھے اور آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اماں کہنے لگی میں تجھے سب بتاؤں گی مگر ابھی نہیں۔ مگر پھر اماں کو سب بتانے کا موقع ہی نہ ملا۔ انہیں اگلے دن اچانک ہی فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر سے لگ گئیں۔ ابا کو اس دن کے بعد سے میں نے نہیں دیکھا، وہ پھر سے غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں نے کالج چھوڑ کر اماں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ میں نے ابا کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ 7 سال اماں بستر پر پڑی رہیں۔ آخری وقت میں وہ تھوڑا بہت بولنے کے قابل ہو گئیں۔ اپنے مرنے سے چند دن قبل اماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرا وقت اب تھوڑا ہی رہ گیا ہے، اس لیے میں آج تمہیں ساری حقیقت بتا دینا چاہتی ہوں۔ پہلے تو یہ جان لو کہ تم میری اولاد نہیں ہو، میری سگی بیٹی نہیں ہو، ہم تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ میرا شوہر سویٹر بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے اس نے جلد ہی مالک کے دل اور گھر میں جگہ بنا لی۔ وہ اکثر مالک کی بیوی کے لیے ڈرائیوری کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ اس کے مالک اس پہ بہت بھروسہ کرنے لگے۔ میرے شوہر نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں جب پوچھتی تو کہتا بتا کر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں یہی راز کام آ جائے۔ میں اور اس کے مالک کی بیوی اکٹھی حاملہ ہوئی تھیں۔ وہ مجھے آ کر ایک ایک بات بتاتا تھا۔ پھر چھٹے مہینے ہی اچانک ایک کار حادثے میں مالک کا انتقال ہو گیا۔ مالک کے مرنے کے بعد میرے شوہر نے مالکن کا بہت خیال رکھا۔ مجھے چھوڑ کر اپنے مالک کی بیوی کو لے کر ہسپتال کے چکر لگاتا رہتا۔ میں غصہ کرتی تو کہتا کہ یہ سب میں اپنے اور تمہارے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہوں، تو میں چپ ہو جاتی۔ اس وقت مجھے اس کی سمجھ نہ آتی کہ وہ کیا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ہم دونوں کی ڈیلیوری بھی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ میرے گھر بیٹے نے جنم لیا اور مالکن کے گھر بیٹی نے۔ میرے شوہر نے بنا مجھے بتائے بچے تبدیل کر دیے۔ مالکن کی بیٹی یعنی تمہیں لا کر میری گود میں ڈال دیا اور میرا بیٹا مالکن کی گود میں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بچہ اس ساری جائیداد کا مالک ہوگا، اس لیے اس نے بچے بدل دیے۔ اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، اس لیے میں نے تمہاری پرورش اپنی سگی بیٹی سمجھ کر کی۔ میرا شوہر مالکن سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ساری دولت اور جائیداد پر قابض ہو جائے، مگر مالکن اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میرے شوہر کو اس پہ اپنا اعتماد قائم کرنے میں سالوں لگ گئے اور پھر آخر اس نے چوری چوری مالکن سے شادی کر لی۔ مجھے 2-3 سال بعد پتہ چلا اور روز ہماری لڑائی ہونے لگی۔ اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ میری اولاد بھی اس نے بدل دی تھی، صرف اور صرف دولت کے لالچ میں۔ میں اس سے بہت لڑتی تھی، تنگ آ کر وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسا بھی تھا اس نے پورے گھر کا خرچ سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نوبت فاقوں تک آ گئی۔ ایک دن وہ مجھے ملا تو کہنے لگا کہ ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے صلح کر لو، ہم دونوں اگر چاہیں تو مالکن کو راستے سے ہٹا کر ساری دولت پر خود قابض ہو سکیں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی امیر بیوی جادو سے مر جائے، اس لیے وہ پہلے تو روز رات کو ایک سویٹر لے جاتا اور اس پر کالا علم کروا کر اپنی بیوی کو پہنا دیتا، جس سے اس کی بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر میرے شوہر نے میرے دل میں بھی لالچ پیدا کر دیا۔ میں روز اس کے ساتھ رات کو سویٹر دینے کے بہانے ایک عامل کے پاس جاتی۔ وہ عامل کہتا کہ سوکن کا وار بڑا کاری ہوتا ہے، تو اگر پورے 40 دن یہ عمل کر لے گی تو تیری سوکن فالج کا شکار ہو کے مر جائے گی۔ میں اس عامل کے دیے گئے پانی کو خود پر چھڑک لیتی تھی، اسی لیے جب میں گھر آتی تو گیلی ہوئی ہوتی۔ پھر ایک دن تم نے دیکھ لیا کہ میرا شوہر زندہ ہے۔ ہم ڈر گئے کہ کہیں تم ہماری جاسوسی کر کے سب جان نہ جاؤ، مگر تسلی کی بات یہ تھی بس 2 دن کا عمل رہ گیا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی ہم دونوں عامل کے پاس بیٹھے عمل کر رہے تھے کہ اچانک اس کی دوسری بیوی آ گئی۔ اسے دیکھ کے ڈر کے مارے ہم دونوں حصار سے باہر آ گئے اور وہ پانی مجھ سے ضائع ہو گیا۔ اتنے دن کا عمل ضائع ہو گیا۔ وہ تو اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر سرے سے مکر ہی گیا اور سارا الزام میرے سر لگا دیا کہ جانے یہ عورت کون ہے، یہ جادو کے ذریعے مجھے اپنے بس میں کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھا بجھا کر وہاں سے لے گیا۔ عمل الٹا ہونے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی اور یوں مجھے میرے اعمال کی سزا ملی کہ فالج ہو گیا۔ میرا شوہر اس دن کے بعد سے پلٹ کر نہیں آیا، شاید اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے۔ اس کے پاس اپنا بیٹا تھا اور بیوی بھی، دولت بھی تھی، تو وہ بھی یہاں کیوں آتا؟
अम्मा ने सारी कहानी सुनाकर मुझसे माफ़ी मांगी और हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। मैंने अम्मा के मरने के बाद अम्मा के शौहर को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मिले। आखिर 3 साल बाद मैंने उस शख्स को देखा जिसने 10 साल मुड़कर अपनी औलाद को भी ना पूछा। मैंने उससे बदला लेने का फैसला कर लिया और उसे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारा राज तुम्हारे बेटे को दे दूंगी। मैंने जानबूझकर उसके बेटे से शादी की। मेरा मकसद इसकी तरह दौलत का हसूल नहीं है, मैं सिर्फ उसे परेशान करना चाहती थी, इसीलिए उसके बेटे से शादी कर ली। अब मैं सोच रही हूँ कि उसके बेटे का तो इसमें कोई कसूर नहीं, वो तो कुछ नहीं जानता। मैंने उसे तकलीफ देने की खातिर उसके बेटे से शादी कर ली है, मगर मैं चाहकर भी अपने शौहर के साथ बुरा नहीं कर सकती। मैं अब यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। अपना बदला मैं रोज़े महशर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मेरी वजह से एक बेकसूर इंसान को परेशानी ना हो। यहाँ तक पहुँचकर उसकी रवादात ख़त्म हो गई थी। मैं सारी दास्तान पढ़कर हक्का बक्का रह गया। मेरा सौतेला बाप असल में मेरा सगा बाप होगा और इस कदर बुरा इंसान होगा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं तो उसे हमेशा एक अजीम इंसान समझता रहा, जिसने एक बेवा और बच्चे की माँ से शादी करके उसे सहारा दिया। मेरी माँ ने उसे हमेशा मेरा बाप ही कहा और मैं भी उसे सगे बाप के बराबर ही समझता रहा। रुबाब की डायरी पढ़कर मुझे खुद से घिन आई कि मैं इंसान का बेटा था। उसे जब मालूम हुआ कि मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ, तो वो मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मैंने सारी दौलत रुबाब के नाम कर दी, क्योंकि असल हकदार तो वही थी। मैं तो इस घर और बिजनेस का हकदार नहीं था। मेरे बाप ने हम दोनों से माफ़ी मांगी, मगर हम में इतना हौसला नहीं था कि उसे माफ़ करते। शर्म के मारे वो ईदी सेंटर चला गया। मैंने रुबाब को कहा, मैं तुम्हें दिल से अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ, मगर अब मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, इसलिए जो फैसला तुम करोगी मुझे मंजूर होगा। उसने मुझे कहा कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हूँ। मैं बहुत खुश हुआ और हम दोनों ने मिलकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं कभी कभार अपने बाप से मिलने चला जाता हूँ। क्या करूँ, बाप है मेरा। मैं कितनी भी बेरुखी क्यों ना दिखाऊं, उसका और मेरा रिश्ता तो नहीं बदल सकता ना। और यही सोचकर मैं कभी कभी उसका हालचाल पूछने चला जाता हूँ। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।